Hey guys, welcome back to again my channel. Today we have seen a very interesting chapter of that is a reaction of acid and base. In that chapter we have learned a chemical reaction regarding to the acids or regarding to the base. इसमें हम ऐसे कुछ आज पढ़ने वाले हैं जो कि इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए. तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? There are many points which cover in that topic, just like a reaction of acid with a metal or a base or any other component like a carbonate. Okay, and reaction of base also with acids with other component on a metal oxide also. So after the starting the session, I requested to you hit the bell icon and please subscribe our channel for next update of their videos. So no break, only take. Let's start the lecture. In a reaction of acid and base, there are many points which important for our papers. ऐसे इसमें कुछ पॉइंट होते हैं जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. आपने अगर एक टॉपिक कवर कर लिया, जैसे कि आपको मालूम है एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, ये आपको मालूम होगा तो इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर, आपके लिए बहुत ही इजी जाएगा. तो इसके लिए बेसिक है आयोनाइजेशन कंसेप्ट पे ये सभी डिपेंड है. आयोनाइजेशन कंसेप्ट क्या होती है वो पहले जान लो, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शन के बाद. ओके, तो आयोनाइजेशन ये क्या कंसेप्ट है? आयोनाइजेशन इट्स अ कंसेप्ट और इट इज अ typical type of reaction in which formation of ions like a positive and a negative is called as the ionization. अगर हम कोई एक कंपाउंड डालते हैं वाटर में तो डालने के बाद उसका डिसोसिएशन होगा. डिसोसिएशन यानी क्या? ये एक आयन स्प्लिट होगा और ये एक आयन स्प्लिट होगा. तो स्प्लिटिंग ऑफ आयन एंड फॉर्म द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशंस. अगर कोई भी सब्सटेंस हम वाटर में डालते हैं तो वाटर में डालने के बाद उसकी स्प्लिटिंग होगी प्लस और माइनस में, उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन. जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, हमने अगर पानी में डाला NaCl तो NaCl का आयोनाइजेशन कैसा होगा? Na प्लस एंड Cl माइनस. ऐसे ही सभी सब्सटेंस का होता है. ये कंसेप्ट आपको समझ में आया ना, तो बस ये बहुत ही इजी चैप्टर होने वाला है आपके लिए. तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ अ मेटल ऑक्साइड. फर्स्ट वी यूज अ टू रिएक्टेंट, दैट इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन इन बिटवीन them, then magnesium acquire a positive charge, oxygen acquire a negative charge, hydrogen acquire a positive charge, chloride acquire a negative charge. The positive charge is goes towards a negative charge, means it form the H2O. Okay, ये दो H है और एक ऑक्सीजन क्या फॉर्म होगा? H2O फॉर्म होगा. उसके बाद यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो एज इट इज आएगा. हमारे पास क्लोराइड के कितने आयन से? 2 आयन से. सो क्या आएगा इसको? Cl2. ओके, तो ये क्या हो गई? रिएक्शन हो गई किसकी? विथ अ मेटल ऑक्साइड. तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या आएगा? When we have the explanation about that reaction, the explanation is magnesium oxide is react with a hydrochloric acid, then it form magnesium chloride along with a water. It form the neutral substance when a metal oxide is react with a acid. तो ये metal oxide कैसे form होते हैं? Metal oxide is nothing but when any metal is react with a oxygen, then it form the metal oxide. अगर कोई भी एक metal ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है तो वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और वही मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट होता है तो वो क्या फॉर्म करेगा? वाटर फॉर्म करेगा. दूसरा एक एग्जांपल हम अच्छे से लेते हैं. यहाँ पे और एक एग्जांपल लेंगे, हम लेंगे जिंक ऑक्साइड इज रिएक्ट विथ एसिड्स. अब दूसरा एसिड ले लो. ओके, तो इसमें क्या होगा? You know very well, zinc is a metal, so it acquire the positive charge. Oxygen is a non-metal, so it acquire the negative charge. After that, in a sulfuric acid, hydrogen acquire a positive and sulfate acquire a negative. This positive charge goes to the negative charge, then it form a zinc sulfate. Okay,
हमारा क्या बाकी रहा, ये H2 और ये मीन्स H2O. So we can say that zinc oxide is react with a sulfuric acid, then it form a zinc sulfate along with a water. Second best component of chemical reaction is when any metal is react acid से react होता है तो क्या फॉर्म होगा. हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, इसका नाम है जिंक and it react with a acids means a H2SO4. Okay, zinc is an example of metal and H2SO4 is an example of acids. तो क्या होगा, अगर ये जिंक इससे रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट होने के बाद क्या होगा, ये आयन स्प्लिट होगा. तो आयन स्प्लिट होने के बाद सल्फेट पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, एंड हाइड्रोजन एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज. सो the positive charge is goes to the negative charge, then it form the zinc sulfate and a evolution of hydrogen gas. तो इसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा. तो इससे अच्छे से देखने के लिए एक प्रैक्टिकल करेंगे. यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ली, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ली, यहाँ पे हमने लिया जिंक और यहाँ पे हमने लिया एक एसिड्स. ओके, और वो जिंक को हमने डाल दिया वो एसिड के अंदर. तो एसिड के अंदर डालने के बाद क्या होगा, जिंक सल्फेट फॉर्म होगा और उसमें से छोटे छोटे बबल्स बाहर निकलेंगे और वो बबल्स किसके होंगे, इट इज अ हाइड्रोजन गैस. तो वी कैन से दैट एनी मेटल इज रिएक्ट विद अ एसिड देन इट फॉर्म द हाइड्रोजन गैस. और एक एग्जांपल देखते हैं आपके समझ में आने के लिए. When potassium is the best example of metal and it react with a acid like a hydrochloric acid. तो क्या फॉर्म होगा, potassium is the example of metal, so it acquire the positive charge. Okay, in between a dissociation, hydrogen acquire the positive charge, chloride acquire a negative charge. This positive charge is goes to negative charge, then it form the KCl2 plus H2. Means any metal is react with a acid, then it form the hydrogen gas. It is our second reaction. आपने कभी सुना होगा कि मेटल जो होते हैं वो बहुत सारे केमिकल से रिएक्ट होते हैं. Some metal which react with a other acid with a moderate temperature or the room temperature also. ऐसे भी कुछ मेटल है जो एसिड से रिएक्ट होने के लिए उन्हें कोई टेम्परेचर भी चाहिए, स्पेसिफिक टेम्परेचर भी चाहिए. और ऐसे भी कुछ एसिड्स हैं जिनको टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती, वो रूम टेम्परेचर भी क्या करते हैं, दूसरे से रिएक्शन करते हैं. तो इसमें हम और एक देखने वाले न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस. न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, आपने कभी सुना होगा एसिडिटी के बारे में. अगर हम ज़्यादा कुछ खा लेते हैं तो हमको कभी कभी एसिडिटी होती है. तो एसिडिटी एक एग्जाम्पल है. तो हम एसिडिटी होने के बाद हम क्या लेते हैं, वी कंज्यूम द बेस मीन्स इनो. हम इनो खाते हैं ना. तो इनो खाने का जरिया क्या है, क्यों खाते हैं वो, बिकॉज इनो इज मेड अप ऑफ द बेस and in a stomach it increase the hyper amount of hydrochloric acid. When we consume the base, this base react with a acid and form the neutral solution. कोई भी एक एसिड हो अगर वो बेस से रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन फॉर्म होगा. So we can say that any acid is react with a particular base, then it form neutral solution or the salt solution. Let's see the with examples. Okay. Potassium hydroxide is an example of a base. Hydrochloric acid is an example of acids. Okay, when this base is react with an acid, then what happen? Simply the dissociation of both, that is a potassium and hydrogen. Potassium acquire positive, hydrogen acquire a positive, OH negative and a Ca negative. तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है. क्या है, ये सिर्फ जाएगा माइनस की तरफ. तो क्या फॉर्म होगा, KCl फॉर्म होगा. ओके, रिमेनिंग क्या रहेगा हमारा, हाइड्रोजन और यहाँ पे OH. तो ये रिएक्ट होगा इससे, तो क्या फॉर्म होगा, H2 फॉर्म होगा. तो वी कैन से दैट व्हेन अ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्ट विद अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन इट फॉर्म अ पोटेशियम क्लोराइड अलोंग विद अ वाटर. ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस के लिए. तो और एक एग्जांपल लेते हैं. ये है HNO3 मीन्स अ नाइट्रिक एसिड, KOH मीन्स अ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ये एग्जांपल है बेस
ये एग्जांपल है एसिड का और ये एग्जांपल है बेस का। तो ये दोनों की रिएक्शन होने के बाद क्या फॉर्म होगा, सिंपल है, यहाँ पे डिसोसिएशन होगा, हाइड्रोजन पे आएगा प्लस, NO3 पे आएगा माइनस, पोटेशियम पे आएगा प्लस और OH पे आएगा माइनस। तो ये प्लस जाएगा, इस माइनस की तरफ क्या फॉर्म होगा, H2 प्लस, रिमेनिंग क्या बाकी रहा, KNO3। ओके, इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट और इसका नाम है वाटर। सो वी कैन से दैट व्हेन nitric acid is react with a potassium hydroxide, then it form a potassium nitrate along with a water. It also with the second reaction of acid and base. It is also known as a neutralization reactions. न्यूट्रलाइजेशन का एक बेसिक कंसेप्ट क्या है, कोई भी एसिड, पर्टिकुलर एसिड हो वो कोई भी हो, ओके, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, अगर वो बेस से रिएक्ट होता है तो बेस से रिएक्ट होने के बाद वो क्या फॉर्म करेगा, इट फॉर्म द salt solution or neutral solution. It is a best example of our chemistry. आपको सॉल्ट मालूम ही होगा क्या होता है, सॉल्ट यानी क्या, कोई भी एसिड कोई भी बेस से रिएक्ट होता है तो सॉल्ट फॉर्म होता है। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्ट, 3 टाइप पर ये सॉल्ट के, फर्स्ट होता है एसिडिक सॉल्ट, सेकंड होता है बेसिक सॉल्ट एंड थर्ड होता है न्यूट्रल सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट इज डिफाइंड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज रिएक्ट विथ अ वीक बेस। अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो वो वीक बेस से अगर रिएक्शन करता है देन इट फॉर्म द स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स। ओके, तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स करेगा, मतलब कौन सा, एसिडिक सॉल्ट्स। ओके, तो एसिडिक सॉल्ट यानी क्या, एसिडिक सॉल्ट इज डिफाइंड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज रिएक्ट विथ अ वीक बेस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट और अ एसिडिक सॉल्ट। ओके, सेकंड थिंग इसमें आती है बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट इज डिफाइंड एज अ स्ट्रॉन्ग बेस इज रिएक्ट विद अ वीक एसिड। इसमें कोई भी एक स्ट्रॉन्ग बेस हो वो वीक एसिड से क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन होने के बाद जो कोई कंपाउंड फॉर्म होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, कौन सा, बेसिक सॉल्ट। ओके, और थर्ड आता है न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट यानी क्या, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड or weak acid or strong base or weak base are react together, then it form a neutral solution is known as a neutral salt. उसे हम न्यूट्रल सॉल्ट भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने सॉल्ट्स के प्रकार भी देख लिए, सॉल्ट्स के टाइप भी देख लिए। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी आता है कि अगर आपको दिया जाए कि सॉल्ट की डेफिनेशन लिखो और सॉल्ट के टाइप लिखो तो आपको ये आना ही चाहिए। इसमें हमको पढ़ने का है कि हाउ आर द बेस इज रिएक्ट विद अ नॉन मेटल ऑक्साइड। फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज an example of non-metal oxide and NaOH means a sodium hydroxide is an example of base. When this base is react with a non-metal oxide, then what happen? First upon, we can split all these structure by a simple way. ऐसा कर लेता हूँ जो कि आपको अच्छे से समझ में है। हमारे पास इतने मॉलिक्यूल से, इसमें से क्या होगा, ये Na क्या फॉर्म होगा, Na2, उसके बाद CN2,3, उसके बाद आता है CO3 प्लस H2O, ये 2H और एक O, H2O। तो ये क्यों हो गया, यहाँ पे सोडियम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोक्साइड पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आपको मालूम यहाँ पे सभी नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज के पास। ओके, तो इसके लिए क्या फॉर्म हो गया, सोडियम कार्बोनेट। तो वी कैन से दैट व्हेन एनी नॉन मेटल ऑक्साइड इज रिएक्ट विद अ बेस देन इट फॉर्म आल्सो विद द वाटर और इट फॉर्म द वाटर। इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन हम ऐसे लिखेंगे, carbon dioxide is react with a sodium hydroxide, then it form a sodium carbonate along with a water. ये समझ में आया। और एक एग्जांपल आपको बताता हूँ जो कि आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। हम एक दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने लिए सल्फेट। ओके, सल्फेट की रिएक्शन हमने की 2NaOH के साथ। ओके,
तो इसको थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं। हमारे पास यस 1 2 3, यहाँ पे सभी पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद सोडियम के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है पॉजिटिव चार्ज वाले। ओके, उसके बाद क्या है, OH एंड OH माइनस माइनस। तो ये सोडियम किसके पास जाएगा, नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा, तो क्या होगा, Na2। उसके बाद ये SO4, यस एक 1 2 3 और एक 4 प्लस H2O। ओके, तो ये है रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद सल्फेट। इसकी रिएक्शन कैसे हो गई, सिंपल है, ये सोडियम का पॉजिटिव चार्ज सल्फेट के नेगेटिव चार्ज से कंबाइन हो गया। Why? Because it is a two opposite charge, and after that a remaining molecules form the water. तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे लिखेंगे, सल्फेट is react with a sodium hydroxide, then it form a sodium sulfate along with a water. ये रिएक्शन होती है बेस की कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। हमारा जो सेकंड कंसेप्ट है वो है क्रिस्टलाइजेशन और वाटर क्रिस्टलाइजेशन। फर्स्ट, you know the example of CuSO4. CuSO4 means a copper sulfate. Another name of copper sulfate is a blue vitriol. And most important aspect for a fill in the blank, in a fill in the blank, then question is, what is another name of copper sulfate? Water crystallization means what? Water crystallization means when evaporation of water from any solution, then it form the crystal, or it convert into the crystal form, it called as a water crystallization, or it is known as the crystallization process. तो ये कैसे होती है, ये होने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ, वो आप ध्यान से सुनो। ओके, एक हमने टेस्ट ट्यूब ली, एक टेस्ट ट्यूब में हमने डाला कॉपर सल्फेट मीन्स ब्लू विट्रियल। ओके, उसके बाद हमने उस पर डाला वाटर। तो आफ्टर दैट देन इट शुड बी हीटेड विथ अ माइन्यूट फ्लेम। जो माइन्यूट फ्लेम होती है उसमें हमने क्या कर दिया, वो ऑन कर दिया, गैस ऑन कर दिया। आफ्टर द पासिंग द इंटरवल ऑफ टाइम, दिस वाटर गेट अ बॉईल एंड इट शुड बी द इवेपोरेट इन द फॉर्म ऑफ वेपर। एंड आफ्टर दैट the blue color of a copper sulfate, it should be a disappear, and at one time this color totally colorless, and this blue vitriol are totally colorless. So at that time the blue vitriol is converted into the white vitriol and it forms the amorphous crystal, and it is known as a crystallization process. So crystallization means what? Crystallization means when any substance form a crystal, or it is a property of substance to form the crystals, is known as a crystallization. A best example of crystallization is a copper sulfate, means a blue vitriol. हमने देखा कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो क्रिस्टलाइजेशन की एक बेसिक रिएक्शन होती है, वो कौन सी होती है देख लो। यहाँ पे हमने लिया था कॉपर सल्फेट, ओके, इसको हम कहते थे ब्लू विट्रियल, और इसको हमने क्या किया, हीट किया। आफ्टर द पासिंग द हीट, देन water get evaporate in the form of vapor, and remaining crystal is having a white in color. So we can say that blue vitriol is converted into the white vitriol and form the crystal. This process is known as the crystallization, and it is a main reaction of a crystallization reaction. Electrolysis क्या होता है? Electrolysis is a process in which passing a current in a water and splitting the ions is called as a electrolysis. Electrolysis यानी क्या? जो कोई वाटर होता है या कोई भी एक सॉल्यूशन होता है, इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू रॉड्स। इसमें दो रॉड्स होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। ओके, देन दिस रॉड शुड बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वायर्स and induce the current with the help of battery, and after the on the key, then it circulates the electric current over it, and after that when any compound added into it, then it should be split into the two ions, is known as a electrolysis. तो electrolysis क्या होता है? electrolysis है ना, ये एक ऐसा होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं कोई भी एक सॉल्यूशन में विद द हेल्प ऑफ एनोड और कैथोड। ओके, और उसकी स्प्लिटिंग होती है आयंस में, जो कि कैटायंस और एनायंस होते हैं। ओके, और उससे कहते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये भी आपको बहुत ही जरूरी है, ये हम डायग्राम से पढ़ते हैं, समझो।
ये हमने ले लिया एक बीकर, इसमें एक सॉल्यूशन ले लिया, ओके। इसको कनेक्टेड किया विद द हेल्प ऑफ 2 रॉड्स। एक को नाम दिया हमने एनोड, एक को नाम दिया हमने कैथोड, ओके। एंड these 2 rods is connected with the help of wire and battery and bulb also। यहाँ पे बल्ब लगा गया। तो क्या होगा, इसमें हमने डाल दिया सोडियम क्लोराइड। तो ये डालने के बाद क्या होगा, इसमें एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन होगी। एनोडिक रिएक्शन यानी क्या, दो रिएक्शन विच इज ऑकर इन एनोड इज नोन एज एनोडिक रिएक्शन, और कैथोडिक रिएक्शन यानी क्या, those reaction which occur in a cathode or over a cathode is known as a cathodic reaction। आपको मालूम होगा एनोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ओके। कैथोड क्या है, नेगेटिव चार्ज रॉड है। एक रॉड है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड क्या होता है, एक नेगेटिव रॉड होता है। तो इसमें क्या होगी, स्प्लिटिंग ऑफ आयंस होंगे, और स्प्लिटिंग ऑफ आयन देन इट फॉर्म द Na++Cl-, ओके। ये पॉजिटिव चार्ज ये कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव चार्ज के पास से आएगा, और ये क्लोराइड क्या है, नेगेटिव चार्ज ये कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। तो इससे हम कहते हैं एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन। इस प्रकार हमने ये भी पढ़ लिया कि एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन क्या होती है।